हेलो स्टूडेंट्स और बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एक अधिकृत प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन। इसमें नंबर फर्स्ट आता है फर्म्स इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन, यानी कि अल्पकाल में फर्म का संतुलन। इसमें सुनिए, एज इन अदर मार्केट forms, the firm under monopolistic competition attempts to maximize its profit. It will therefore choose that price and level of output at which it will be able to secure maximum amount of profit. This equilibrium position is indicated by the equality of marginal revenue and marginal cost. In the short period, the firm under monopolistic competition will have average fixed cost, average variable cost, average total unit cost, and the marginal cost. But in the long run, the firm will have only its average total unit cost and its corresponding marginal cost. In short, it should, however, be remembered that in the short run, under monopolistic competition, the individual firm may realize its equilibrium in the sense of earning maximum profits or incurring minimum losses, but the group as a whole is not in stable equilibrium because the number of firms will have a tendency to change, increase or decrease. The existence of full equilibrium is therefore unlikely in the short period under monopolistic competition. अब इसे हिंदी में सुनिए। अल्पकाल में फर्म का संतुलन। अल्पकाल में निकट स्थानापन्न उत्पादित करने वाले उत्पादकों में प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा होती है और उत्पादक मांग के अनुसार अपनी पूर्ति को समायोजित नहीं कर पाते हैं। अतः अल्पकाल में उत्पादक को अधिक मात्रा में लाभ या हानि की संभावना रहती है। यदि फर्म की वस्तु की मांग मजबूत होती है और उसका कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता है तो फर्म अपनी वस्तु की कीमत को ऊंचा निर्धारित करने की स्थिति में होगी और इसलिए यह असामान्य लाभ पैदा कर रही होगी। इससे दूसरी ओर यदि फर्म की वस्तु की मांग कमज़ोर होती है तो फर्म शून्य लाभ अथवा सामान्य लाभ प्राप्त करेगी। इससे तीसरी ओर यदि फर्म की वस्तु की मांग अत्यधिक कमज़ोर होती है तो वह हानि उठाएगी, क्योंकि अल्पकाल में यह संभव हो सकता है कि फर्म अपने उत्पादन का समायोजन मांग के अनुसार न कर सके, जिसके फलस्वरूप असामान्य लाभ, सामान्य लाभ तथा हानि तीनों की संभावना सदैव बनी रहती है। साम्य की इन तीनों संभावनाओं को स्पष्ट किया गया है। अल्पकाल में फर्म को हानि इसलिए होती है कि फर्म उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन नहीं कर सकती है और न ही स्थिर साधनों में परिवर्तन कर सकती है, जो कि अल्पकाल में स्थिर लागतों से बचा नहीं जा सकता। इसलिए फर्म केवल स्थिर लागत एक की हानि सह सकती है। अतः यदि कीमत औसत परिवर्तनशील लागत ABC के सामने समान या इससे अधिक है तो उत्पादन होता रहेगा तथा यदि कीमत ABC से कम हुई तो हानि स्थिर लागत से अधिक हो जाएगी और फर्म उत्पादन बंद करने में ही अपनी भलाई समझेगी। अब नंबर 2 आता है फर्म्स इक्विलिब्रियम इन लॉन्ग रन, दीर्घकाल में फर्म का संतुलन। इसमें सुनिए, In the long period, the price output policy of an individual firm
is determined by the same general principle of equality of MR and MC as in the short period. In other words, the firm can maximize its net revenue by equating marginal cost with its marginal revenue. In the short run, the individual firm is in equilibrium, but the group is not in stable equilibrium because there is a tendency for the number of firms to change. In the long run, however, it is possible both for the individual firm as well as the group to be in stable equilibrium. In other words, it is possible to achieve full equilibrium in the long period. In order to achieve this full equilibrium, two types of long run adjustments will have to take place within the group of monopolistic competition firms. One of these adjustments is that at the stabilized price the quantity offered for sale must equal the quantity that the customers will take. The second adjustment relates to the entry and exit of firms in response to the general position of the existing firms. The first type of adjustment is very similar to that which takes place under perfect competition, though all the monopolistically competing firms do not charge the same price. The price differentials are not very great under monopolistic competition. There will be a general level of the price and also a general level of the AR curves of the individual firms. Each firm adjusts its price and output in such a manner that its MC is equal to its MR on the clear assumption that other firms will not change their price in response to its own actions. Each firm therefore determines its output independently. The summation of the outputs of all the individual firms will give us the total quantity available for sale in the market. This total quantity must equal the quantity demanded by the customers if equilibrium is to be achieved in the industry. If the total quantity placed in the market exceeds, will be a downward pressure on the level of price as in the case of perfect competition. इसको हिंदी में सुनिए। दीर्घकाल में फर्म का साम्य निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। दीर्घकाल में समय इतना अधिक होता है कि फर्म मांग में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपनी पूर्ति को समायोजित कर सकती है। फर्म अपने आकार में परिवर्तन कर सकती है, स्थिर साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है और नई फर्मों की स्थापना की जा सकती है। अतः दीर्घकाल में किसी भी फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि यदि फर्मों को असाधारण लाभ प्राप्त होता है तो प्रवेश की स्वतंत्रता के कारण नई फर्में बाजार में प्रवेश करेंगी। नई फर्मों के आ जाने से कुल मांग विभिन्न फर्मों में बंट जाएंगी और पहले की अपेक्षा प्रत्येक फर्म को कम हिस्सा प्राप्त होगा। कुल पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी, फलस्वरूप कीमतें नीचे गिरेंगी। फर्मों का प्रवेश उस समय तक चलेगा जब तक कि असाधारण लाभ समाप्त नहीं हो जाएगा। दूसरा कारण यह है कि नई फर्में बाजार में अपनी वस्तुओं की मांग का निर्माण करने के लिए कम कीमत निर्धारित करेंगी, जिसका प्रभाव विद्यमान फर्मों की बिक्री पर पड़ेगा। अतः पुरानी फर्मों को भी अपनी कीमतों में कमी करनी पड़ेगी, जिसके फलस्वरूप नए व पुराने विक्रेताओं की कीमतें कम होने के कारण असामान्य लाभ समाप्त हो जाएगा। असामान्य लाभ समाप्त होने का तीसरा कारण यह है कि दीर्घकाल में बहुत सी नई फर्में बाजार में प्रवेश करती हैं, क्योंकि प्रवेश की स्वतंत्रता होती है और थोड़े से पूंजीगत व्यय द्वारा उत्पादन शुरू किया जा सकता है। फर्मों की संख्या
बढ़ने के कारण उत्पादन के साधनों की मांग बढ़ेगी, उनकी कीमतें बढ़ेगी, अतः औसत कुल उत्पादन लागत में भी वृद्धि होगी। औसत लागत बढ़ने के कारण लाभ समाप्त हो जाएंगे। फिर आता है दीर्घकाल में किसी भी फर्म की को हानि नहीं हो सकती। अल्पकाल में तो फर्म हानि को इसलिए सहन कर लेती है क्योंकि उसे यह आशा रहती है कि वह इस हानि को भविष्य में पूरा कर लेगी। अब बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू अभी नहीं सॉरी कैपेसिटी। अगला आता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता में क्षमता उपयोग। इसमें सुनिए चैम्बरलेन्स डिस्कशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड जॉन रॉबिन्सन्स डिस्कशन ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन reveal that firms operate with excess capacity. A firm under monopolistic competition or imperfect competition produces an output in the long run equilibrium which is less than optimum or ideal output. This will happen when the firms do not produce the level of output at which long run average cost is minimum. हिंदी में सुनिए इसे। एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता की औसत आगम रेखा गिरती हुई रेखा होती है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम रेखा एक पड़ी हुई रेखा होती है। इसका कारण यह है कि एक रेखा होती है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम रेखा एक पड़ी हुई रेखा होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में पड़ी औसत आगम AR आकार की औसत लागत रेखा को निम्नतम बिंदु पर स्पर्श करती है। आगे आता है ग्रुप इक्विलिब्रियम, समूह संतुलन। इसके बारे में सुनिए। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में समरूप वस्तुओं का उत्पादन करने वाली बहुत सी फर्में होती हैं। इन फर्मों के समूह को उद्योग कहा जाता है। एक अधिकार की स्थिति में केवल एक ही फर्म होती है, अतः समूह या उद्योग का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। एक अधिकृत प्रतियोगिता की स्थिति में बहुत सी फर्में होती हैं, परंतु उनकी वस्तुएं निकटतम स्थानापन्न होती हैं, अर्थात उनमें विभिन्नता पाई जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।